عید سے 2 دن پہلے میں اپنے بھائی سے پیسے مانگنے گئی۔ وہ بہت امیر تھا، لیکن بھابھی نے مجھے دیکھتے ہی کہا، تمہارا شوہر مر گیا ہے، تم سڑک پر بیٹھ کر بھیک مانگو، تمہیں دینے کو ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرا بھائی ہر ماہ غریبوں میں لاکھوں روپے تقسیم کرتا، مگر غریب بہن کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں تھا۔ میں بھی وہیں سڑک پر بیٹھ کر بھیک مانگنے لگی تاکہ لوگوں کو پتہ تو چلے، لاکھوں کی خیرات کرنے والے بھائی کے پاس غریب بہن کے لیے کچھ نہیں ہے۔ ابھی کچھ دیر گزری تھی کہ ایک گاڑی میرے پاس آ کر رکی۔ میں گھبرا کر وہاں سے کھڑی ہو گئی، لیکن گاڑی سے نکلتے ہوئے آدمی کو دیکھ کر میرا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ میں وہاں سے بھاگنے لگی، لیکن اس نے مجھے اپنی پسند سے اسد سے شادی کر رہی تھی۔ وہ میرے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا اور مجھے پسند کرتا تھا، مگر گھر والوں کو اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ مگر میری بھابھی نے منہ بنایا ہوا تھا۔ وہ اس رشتے پر خوش نہیں تھی کیونکہ وہ میری شادی اپنے بھائی سے کروانا چاہتی تھی۔ انہوں نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح سے میری شادی اسد سے نہ ہو، مگر بھائی ہر طرح سے میرا ساتھ دے رہا تھا۔ اور پھر بھابھی کی ہار اور میری جیت ہو گئی۔ دلہن بن کر اسد کے گھر آ گئی۔ اسد نے مجھے ہاتھوں پر اٹھا رکھا تھا اور ہر میری چھوٹی بڑی خواہش پوری کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ شادی کے کچھ عرصے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے خاص انعام سے نوازا۔ میں ماں بننے والی تھی۔ اسد کو خوشی تھی، وہ مجھے ہر وقت احتیاط برتنے کا کہتا، ہر وقت میرے ارد گرد یوں گھومتا جیسے میں کوئی قیمتی خزانہ ہوں۔ جب ہمارے گھر ایک ننھا سا فرشتہ آیا تو ہماری خوشیاں دوبالا ہو گئی۔ ایک معصوم سا بیٹا اپنی ننھی ننھی حرکتوں سے ہمارے دلوں کو روشن کر گیا۔ اسد کی آنکھوں میں اپنے بیٹے کے لیے بے پناہ محبت دیکھ کر میرا دل مزید بھر آتا۔ وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے گھر میں مزید خوشیاں آئیں۔ ایک اور بیٹے اور پھر ایک بیٹی کی پیدائش نے ہماری خوشیوں کو 100 گنا کر دیا۔ میں اپنے 3 بچوں کے ساتھ مکمل ہو گئی تھی۔ ہماری زندگی میں اگر کوئی کمی تھی تو بس اتنی کہ ہم چاہتے تھے کہ اپنا کاروبار مزید بڑھائیں۔ اسد کے خواب بڑے تھے۔ وہ چاہتا تھا اپنے بچوں کو وہ سب کچھ دے جس کا وہ حق رکھتے ہیں۔ اسی خواہش نے اسے دبئی جانے پر آمادہ کیا۔ وہ کہتا تھا، چند سال کی محنت کے بعد ہم ایک ایسا مستقبل بنائیں گے جہاں ہمارے بچے کسی کمی کے شکار نہیں ہوں گے۔ مجھے یاد ہے جب اسد دبئی روانہ ہوا تھا، میں نے اپنے دل کو سمجھایا تھا کہ یہ فاصلہ وقتی ہے۔ ہر شام میں اس کی آواز کو سن کر خود کو تسلی دیتی، سب ٹھیک ہے۔ وہ ہمیشہ ہنستا ہنستا کہتا، فاطمہ بس تھوڑا سا صبر کرو، پھر ہم سب ہمیشہ کے لیے ایک ساتھ ہوں گے۔ میں بھی دل میں یہی وعدہ کرتی کہ ہر حال میں اس کا انتظار کروں گی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ جو گھر محبت سے بھرا تھا وہ عنقریب ویرانی کا شکار ہو جائے گا۔ میں اپنے 3 بچوں کے ساتھ خوشی خوشی اپنے شوہر کے لوٹنے کا انتظار کر رہی تھی، لیکن تقدیر میرے لیے کچھ اور ہی لکھ چکی تھی۔ اسد کے دبئی جانے کے بعد زندگی کا رنگ ہی بدل گیا تھا۔ پہلے تو فون کالز پر گھنٹوں باتیں ہو جاتی، بچے بھی ابا کی آواز سن کر خوش ہو جاتے۔ ہر ہفتے اسد کا پارسل آتا، بچوں کے لیے کھلونے، میرے لیے کچھ کپڑے، کبھی مہندی کی خوشبودار گوند، کبھی چھوٹے چھوٹے تحفے۔ میرے دل میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ وہ کہتا تھا، فاطمہ بس یہ شروعات ہے، جلد ہی تمہیں اپنے پاس بلا لوں گا، اپنے ہاتھوں سے گھر سجائیں گے۔ میں خوابوں کی دنیا میں جینے لگی۔ ایک شام حسب معمول بچوں کو کھانا کھلا کر ان کے سونے کا وقت کر رہی تھی کہ فون کی گھنٹی بجی۔ میں نے بھاگتے ہوئے فون اٹھایا۔ دل خوشی سے دھڑک رہا تھا کہ شاید اسد نے کوئی خوشخبری سنانے کے لیے فون کیا ہے، مگر دوسری طرف کوئی اجنبی آواز تھی، بی بی جی آپ فاطمہ بات کر رہی ہیں؟ میں نے الجھتے ہوئے ہاں کہا۔ بی بی جی ہمیں افسوس ہے، اسد صاحب کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ میرے ہاتھ سے فون چھوٹتے بچا۔ میں نے کانپتے ہوئے پوچھا، کیا مطلب، کیسا ایکسیڈنٹ، کہاں ہیں وہ؟ دوسری طرف خاموشی چھا گئی، پھر آواز آئی، ہم معذرت خواہ ہیں، اسد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے۔ اس ایک جملے نے میری پوری دنیا جیسے ہی روک کر، کمرہ، دیواریں، زمین، سب میرے ارد گرد گھومنے لگے۔ میں دیوار کو سہارا لے کر کھڑی رہی۔ بچے کھیل رہے تھے، ہنس رہے تھے اور میں ایک لمحے کے اندر ٹوٹ گئی۔ دل چاہا کہ چیخوں، لیکن آواز جیسے گلے میں پھنس گئی تھی۔ امی پاس آئیں تو میں بس اتنا کہہ سکی، امی اسد نہیں رہا، اور پھر بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ ہوش آیا تو پورا گھر سوگ میں ڈوبا ہوا تھا۔ محلے کی عورتیں آتی جاتی
مجھ سے اظہار افسوس کرتی، لیکن میں کسی کی بات سننے کے قابل نہیں تھی۔ چند دن اسی حال میں گزر گئے۔ تقریباً 7 دن بعد خبر آئی کہ اسد کی لاش پاکستان آ رہی ہے۔ میں نے خود کو سنبھالنے کی بہت کوشش کی، مگر اندر کہیں ہلچل تھی۔ میں دروازے پر کھڑی رہی، انتظار کرتی رہی۔ جب تابوت آیا تو پورا محلہ خاموش ہو گیا۔ میرے بھائی، والد اور محلے کے کچھ مردوں نے تابوت کو اندر لایا۔ میں نے آگے بڑھنے کی کوشش کی تو امی نے مجھے روک لیا۔ فاطمہ بیٹی، خود کو سنبھالو۔ مگر ماں کا سہارا بھی کہاں کافی تھا۔ میں نے بے اختیار تابوت کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ جب کفن ہٹایا گیا تو جو چہرہ سامنے آیا وہ پہچان سے باہر تھا۔ ایک لمحے کے لیے لگا یہ میرا اسد نہیں ہو سکتا۔ چہرہ اتنا بگڑ چکا تھا کہ دل برداشتہ ہو گیا۔ میں تابوت کے قریب بیٹھ کر ہچکیاں بھر کر رونا شروع کر دیا۔ اسد، تم نے وعدہ کیا تھا کہ تم واپس آؤ گے، ایسے کیسے جا سکتے ہو؟ لوگوں نے بڑی مشکل سے مجھے وہاں سے ہٹایا۔ دفن کے وقت میں نے خود کو سنبھالنے کی آخری کوشش کی، لیکن دل اندر سے خالی ہو چکا تھا۔ قبر پر مٹی ڈالتے وقت میرا دل بار بار چیخ رہا تھا، اسد، اسد، واپس آ جاؤ، لیکن اب کوئی صدا سننے والا نہیں تھا۔ اسد کے بغیر وقت ایسے گزر رہا تھا جیسے صدیوں پر محیط ہو۔ کچھ دن بعد سسرال والوں کا رویہ بھی بدلنے لگا۔ جہاں پہلے تسلی اور ہمدردی کے الفاظ تھے، اب وہاں الزام تراشی اور کڑوی باتیں تھیں۔ میں نے ہر بات پر چپ اختیار کی، جانتی تھی کہ اس وقت میرے بچے میرا اصل سہارا ہے۔ ان کے لیے جینا تھا، ان کے لیے خود کو مضبوط رکھنا تھا۔ ایک شام میں بچوں کو کھانا کھلا رہی تھی کہ ساس میرے پاس آئیں اور کڑوا لہجہ بناتے ہوئے بولی، اگر تو ہمارے گھر نہ آتی تو میرا بیٹا آج زندہ ہوتا۔ تیری نحوست نے سب کچھ برباد کر دیا۔ میں نے چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ دل چاہا کہ صفائی دوں، کہہ دوں کہ موت زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن میری زبان بند ہو گئی۔ میں نے نظریں جھکا لیں اور چپ چاپ اپنے بچوں کی پلیٹوں میں کھانا ڈالتی رہی۔ سچ یہ تھا، اس وقت میرے پاس الفاظ ہی نہیں تھے۔ ایک دن ساس نے محلے کی چند عورتوں کو بلا لیا۔ میں کمرے میں بیٹھی بچوں کو لوری دے رہی تھی کہ باہر سے آوازیں آنے لگی۔ دیکھا، جب سے یہ لڑکی آئی ہے تباہی تباہی۔ پہلے سسر فالج میں مبتلا ہوئے، اب بیٹا مر گیا۔ اللہ بچائے ایسی بہو سے۔ میں دروازے کی اوٹ میں کھڑی سنتی رہی۔ دل چاہا کہ چیخ چیخ کر کہوں، موت تو اللہ کے حکم سے آتی ہے، لیکن چپ رہی۔ بچوں کی طرف دیکھا تو دل خود بخود صبر کی طرف جھک گیا۔ میں جانتی تھی کہ اب میرا ہر عمل ان کے لیے تھا، آنسو، خاموشی، ہر برداشت صرف ان کے لیے تھی۔ ایک دن ساس نے حد ہی کر دی۔ میں برتن دھو رہی تھی کہ پاس آ کر میرے ہاتھ سے برتن چھینتے ہوئے بولی، یہ اپنے کپڑے اٹھا اور نکل جا، تیرا سایہ بھی برداشت نہیں ہمیں۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر کہا، امی کہاں جاؤں گی؟ بچے کہاں جائیں گے؟ وہ غصے سے چلائیں، جہاں مرضی جا، ہمارے گھر میں نہیں۔ اسی وقت محلے کی چند عورتیں بھی آ گئیں۔ سب نے مل کر میرا تماشا بنایا۔ ایک نے کہا، یہی تو منحوس ہے، پہلے اپنے سسر کو بھی مار گیا، پھر شوہر کو مار ڈالا۔ میں نے آنکھیں بند کر لی۔ الفاظ میرے اندر تیر بن کر گھس رہے تھے، مگر زبان پر ایک حرف نہ آیا۔ بچوں نے جب دیکھا کہ میں رو رہی ہوں تو وہ میرے قریب آ کر لپٹ گئے۔ میرا بڑا بیٹا بولا، امی ہمیں کہاں لے جائیں گی؟ میں نے خود کو مضبوط کیا اور کہا، جہاں اللہ لے جائے وہاں چلیں گے۔ میں اپنی عدت اس گھر کے اندر پوری کرنا چاہتی تھی، مگر میری ساس کی نیت کچھ اور تھی۔ چند دن بعد ساس نے مجھ پر آخری ضرب لگائی۔ ایک دوپہر کو جب میں ظہر کی نماز پڑھ رہی تھی، وہ کمرے میں آئیں، میرے کپڑے پھینک دیے اور سخت لہجے میں بولی، بس نکل جا یہاں سے، جا اپنی نحوست کہیں اور لے جا۔ میں نے قرآن پاک کو ہاتھ لگا کر کہا، امی میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، اللہ گواہ ہے، لیکن ان کے دل میں رحم کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ میں نے کپڑے اٹھائے، بچوں کو تھاما اور باہر صحن میں آ گئی۔ محلے کے لوگ تماشا دیکھنے کے لیے کھڑکیوں اور دروازوں پر کھڑے تھے۔ میں نے نظریں جھکائیں، اپنی عزت، اپنی تکلیف، اپنے خوابوں کو دل میں دفن کر کے گھر سے نکلنے لگی۔ ایک بزرگ عورت نے قریب آ کر کہا، بیٹی اللہ بڑا ہے، صبر کر۔ میں نے آنکھوں میں آنسو بھر کر ان کی طرف دیکھا اور چپ چاپ بچوں کو لے کر محلے کی گلیوں سے نکل گئی۔ مصیبت نے مجھے بھی یار و مددگار چھوڑ دیا تھا، لیکن میں نے دل میں طے کر لیا کہ ہار نہیں مانوں گی۔ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ میرا حساب لے گا۔ جب میں گھر سے نکلی تو دن کا وقت تھا، سورج
सर पर दमक रहा था और गलियों में अजीब सी खामोशी थी, मगर खिड़कियों के पीछे छुपे चेहरे, दरवाज़ों के पीछे लगी नज़रें मुझे महसूस हो रही थी। मैंने अपने बच्चों को साथ लिया। सामान मुख्तसर था, बस एक पुरानी सी चादर में लिपटा हुआ चंद जोड़े और बच्चों का कुछ सामान। चंद कदम चलने के बाद बच्चे थकने लगे। छोटी बेटी मेरे कंधे पर सर रखकर सो गई थी। बड़े दोनों लड़खड़ाते कदमों से मेरे साथ चल रहे थे। मैंने एक पुराने से दरख्त के नीचे बैठने का सोचा, मगर वहाँ भी दो औरतें बैठी थीं जो मेरे आते ही अपनी बातों का रुख मोड़ बैठी। यही है वो बदकिस्मत। हाँ सुना है, शोहर को भी खा गई है, अब भाई के दर पर जाएगी। देखना वो दरवाज़ा भी बंद होगा। मेरे अंदर कुछ कुचल सा गया। मैंने बच्चों को संभाला और दोबारा चल पड़ी। मैंने सड़क अबूर की। एक रेहड़ी वाले ने मुझे देखा तो सर झटक कर बोला, अल्लाह की पनाह, कुछ औरतें खुद को अपने नसीब फोड़ लेती हैं। मुझे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। हर तरफ तमाशाई, हर तरफ इल्ज़ाम। एक कोने में एक पुरानी इमारत का साया नज़र आया। मैंने सोचा कुछ देर वहाँ रुक जाऊँ ताकि बच्चों को पानी पिला सकूँ। सामने से एक शनासा औरत नज़र आई, मोहल्ले की माई रशीदा, जिसने कभी मेरे वलीमे पर बढ़ चढ़ कर कसीदे पढ़े थे। मैंने उम्मीद से उनकी तरफ देखा। वो पास आई, मेरे बच्चों को देखा और अफसोस से सर हिलाया, मगर फिर एक तरफ होकर कहने लगी, बेटी लोग बातें करेंगे, अपनी इज़्ज़त बचाकर चली जा, यहाँ तुझे कोई जगह नहीं देगा। मैंने धीरे से सर हिलाकर शुक्रिया अदा किया और आगे बढ़ गई। दिल में एक ही दुआ थी कि अल्लाह किसी दर को मेरे लिए खोल दे। चलते चलते मुझे याद आया कि भाई का घर ज़्यादा दूर नहीं। एक नई उम्मीद पैदा हुई। मैंने बच्चों को थाम कर रास्ता बदला। कदम भारी हो चुके थे, मगर दिल में थोड़ी सी रोशनी थी कि शायद भाई मेरा सहारा बने। जब मैं भाई के घर के सामने पहुंची तो सांस फूल चुकी थी। भाई का घर अब भी ऐसा ही था, ऊंची दीवारों और बड़े गेट के साथ। दरवाजे पर पहुंचकर मैंने धड़कते दिल के साथ दस्तक दी। थोड़ी देर बाद नौकर बाहर निकला। उसने मुझे पहचान लिया, मगर चेहरे पर कोई खुशी या अफसोस का तासुर नहीं था। बस सवालिया अंदाज में बोला, कौन चाहिए? मैंने धीरे से कहा, भाई से मिलना है। बताओ, फातिमा आई है। नौकर ने कुछ लम्हे तवक्कुफ किया, अंदर गया और वापस आकर बोला, बेगम साहिबा कहती हैं भाई साहब सो रहे हैं, बाद में आना। मेरी आंखें भीग गईं। मैंने बच्चों की तरफ देखा जो थके थके मेरे साथ खड़े थे। मैंने फिर कहा, बस एक बार कह दो, बहन बाहर खड़ी है, जल्दी नहीं, बस एक झलक देखनी है। नौकर अंदर गया, लेकिन जब वापस आया तो उसकी बात और भी कठोर थी। बेगम साहिबा कहती हैं हमें तंग न करो, वरना गार्ड को बुलाएंगे। मेरी सांस अटक गई। जिन हाथों ने मुझे कभी गुड़िया लाकर दी थी, आज उन्हीं के दरवाजे मेरे लिए बंद हो गए थे। मैंने हार न मानी, गेट पर बैठ गई। बच्चों को सीने से लगाकर आसमान की तरफ देखते हुए अल्लाह से दुआ करने लगी। कुछ देर में भाभी खुद गेट पर आ गई और दरवाजे का छोटा सा पट खोला और तेज लहजे में बोली, फातिमा इज़्ज़त से वापस चली जा, यहाँ कोई जगह नहीं तेरे लिए। भाई के सर पर पहले ही बूढ़े माँ बाप का बोझ है, अब तेरी जिम्मेदारी नहीं उठा सकते। मैंने लरसती हुई आवाज़ में कहा, भाभी मैं काम कर लूँगी, घर के सारे काम कर दूँगी, बस एक छत दे। वो मेरे बच्चों को यतीमी के दर दर की ठोकरें ना खाने दो। भाभी ने तंजिया हंसते हुए कहा, यही वक्त था कि तेरे तेवर देखने के। आज हाथ जोड़ने आ गई है, माफ़ कर, यहाँ तेरी जगह नहीं। इतने में अंदर से अम्मी की मध्यम सी आवाज़ आई, कौन है दरवाजे पर? मैंने फ़ौरन कहा, अम्मी मैं हूँ फातिमा। भाभी ने दरवाजे की ओट में होकर जवाब दिया कि कोई मांगने वाली है। अम्मी आप फिक्र न करें, और फिर दरवाजे को ज़ोर से बंद कर दिया। मैं पत्थर होकर बैठ गई, न चीख सकी न रोई, सिर्फ खामोशी में डूबी रही। बच्चे भूख से बिलख रहे थे। मैंने छोटे बेटे का सर से लाते हुए कहा, बेटा सब्र करो, अल्लाह कोई रास्ता निकालेगा। घंटे 2 घंटे यूं ही गेट के बाहर गुजर गए। कुछ मोहल्ले वालों ने मुझे देख लिया। एक औरत ने सरगोशी की, कभी जो राज करती थी आज दरवाजे पर बैठी है, वक्त का क्या भरोसा। एक उधेड़ उम्र मर्द ने सर हिलाकर कहा, इंसान को गरूर नहीं करना चाहिए, देखो आज वक्त ने कैसा रुसवा कर दिया है। मैंने अपनी चादर को मजबूती से लपेट लिया, बच्चों को करीब किया और उठ खड़ी हुई। दरवाजे पर आखिरी बार नज़रें दौड़ाईं और दरवाज़ा अब भी बंद था, और दरवाजे के पीछे
वो चेहरे छुपे थे जिनसे मैंने मोहब्बत की थी, जिन पर एतबार किया था। मैंने कदम पीछे हटाए, ना कोई मंजिल ना कोई रास्ता, बस बच्चों का हाथ थामे आगे बढ़ गई। हर कदम मेरे एतबार को तोड़ता जा रहा था, हर लम्हा मेरी हिम्मत को आजमा रहा था। एक मोड़ पर एक पुरानी दुकान नजर आई, जिसका छोटा सा साइबान निकला हुआ था। मैंने सोचा यहाँ कुछ देर बैठ जाऊँ, बच्चों को भी थोड़ी थोड़ी छाँव मिल जाएगी। वहाँ बैठते ही एक बूढ़ी फकीरनी ने पास आकर कहा, बेटी ये दुनिया तमाशाई है, तमाशा देखती है, अपने रब से मांगो वही दर खोलेगा। मैंने दिल से आमीन कहा। बूढ़ी औरत ने अपनी पोटली में से एक खुश्क रोटी निकालकर मेरे हाथ में दी। बच्चों के लिए जैसे खजाना मिल गया। मैंने वो रोटी 3 हिस्सों में बांटी। बच्चों ने छोटे छोटे हाथों से रोटी थाम कर खाना शुरू किया। उसी लम्हा मुझे लगा मैंने दुनिया से कोई शिकायत नहीं की। शिकायत उनसे की जाती है जिन पर इख्तियार हो, और यहाँ किसी के पास इख्तियार नहीं था सिवाय इस रब के जिसके दर पर मैं अब थी। रात होने लगी। मैंने फैसला किया कि अब किसी पर भरोसा नहीं करना, अपने बच्चों के लिए खुद रास्ता बनाना है, चाहे जितना ठोकरें खानी पड़े, चाहे जितनी बार ज़मीन पर गिरना पड़े। अब खुद उठना है। आज मुझे सच्चाई का सबसे कड़वा सबक मिला था। जब वक्त बदलता है रिश्ते भी चेहरे बदल लेते हैं, और जब तुम्हें सहारा चाहिए होता है तब तुम्हें एहसास होता है कि जिन्हें तुमने अपनी ताकत समझा था वो तुम्हारी सबसे बड़ी कमज़ोरी थे। सूरज ढलने लगा था। हवा में एक अजीब सी खनकी आ चुकी थी। मैं अपने तीनों बच्चों को लिए सड़क पर एक तरफ पड़ी पुरानी सी बेंच के पास आकर बैठ गई। छोटी बेटी मेरे कंधे पर सर रखकर सो चुकी थी, जबकि दोनों बेटे इधर उधर देखते भूख से बेचैन हो रहे थे। सामने एक छोटा सा रेहड़ी वाला था, जिसके पास पकोड़े और चने बिक रहे थे। तेज खुशबू बच्चों की भूख को मजीद बढ़ा रही थी। छोटे बेटे ने मेरी चादर खींचते हुए कहा, अम्मी भूख लग रही है, खाने को कुछ दो ना। मैंने झुकी नज़रों से उसे देखा। उसकी आंखों में उम्मीद की झलक थी जो मेरे दिल में चुभती चली गई। मेरे पास कुछ सिक्के थे। मैंने जेब में हाथ डाला और सिक्कों को गिना। बस इतने ही थे कि एक आध चीज़ ही खरीदी जा सकती थी। मैंने अपने कदम घसीटते हुए रेहड़ी वाले के पास जाकर पूछा, भाई 5 रुपए में क्या मिल सकता है? रेहड़ी वाले ने हकारत से देखा, फिर बोला, 1 चम्मच चने ले लो, और कुछ नहीं। मैंने 5 रुपए उसके हाथ पर रखे और एक छोटी सी प्लेट में चने लेकर बच्चों के पास आई। बच्चों ने ऐसे लपक कर खाया जैसे महीनों से भूखे हों। मैंने खुद को रोका, खुद नहीं खाया। बच्चों के चेहरे पर ज़रा सी मुस्कुराहट देकर दिल को तसल्ली दी। रात गहरी होने लगी, दुकानें बंद होने लगीं, लोग अपने अपने घरों को जा रहे थे, और हम वहीं उस बेंच पर बेसहारा बैठे थे। थोड़ी देर बाद एक पुलिस की गाड़ी आकर रुकी। एक सिपाही उतरा, हमारे पास आया और सख्त लहजे में कहा, यहाँ बैठने की इजाज़त नहीं है, हटो यहाँ से। मैंने लजाजत से कहा, साहब रात गुजारने दो, सुबह चले जाएंगे। सिपाही ने हाथ नचाकर कहा, यहाँ से सबको रहने दो तो सड़कें भर जाएंगी, दफ़ा हो जाओ। मेरे पास कोई और रास्ता ना था। मैंने बच्चों को उठाया, छोटी को गोद में लिया और फिर सड़क पर चलना शुरू कर दिया। सड़कें सुनसान थीं, हर कदम मेरे लिए पत्थर जैसा भारी था। कुछ दूर एक पुल के नीचे कुछ मजदूरों का ठेका नजर आया। मैंने सोचा शायद वहाँ कुछ देर साया मिल जाए, वहाँ जाकर एक कोने में बैठ जाऊँ। मजदूरों ने एक नज़र देखा, फिर अपनी बातों में मगन हो गए। एक बूढ़े मजदूर ने तरस खाकर एक पुरानी दरी हमारी तरफ फेंकी और कहा, बहन बच्चों को इस पर बिठा दे, ज़मीन ठंडी है। मैंने शुक्रिया अदा किया और दरी बिछाकर बच्चों को सुला दिया। कुछ देर बाद एक औरत अपने 3 बच्चों के साथ वहाँ आई। उसके कपड़े भी फटे हुए थे, मगर आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो मेरे पास बैठते हुए बोली, इधर नई आई हो क्या? मैंने हाँ में सर हिलाया। उसने कहा, यही हमारी दुनिया है बहन, सड़कें, पुल और छाँव जहाँ मिल जाए, बस वही घर। उस औरत ने अपनी पोटली से 2 सूखी रोटियां निकाली और एक मेरे सामने रख दी। ले बहन, भूखी होगी, बांट ले अपने बच्चों के साथ। मैंने इनकार करना चाहा, मगर उसने ज़बरदस्ती रोटी मेरे तरफ बढ़ा दी। मैंने बेबसी से शुक्रिया अदा किया और बच्चों के मुंह में निवाला देने लगी। आज पहली बार मैंने जाना भूख की शिद्दत इंसान की इज़्ज़त नफ्स को कैसे रौंद देती है। रात के आखिरी पहर एक कुत्ता पास आकर भौंकने लगा। बच्चे डरकर मुझसे लिपट गए। मैंने हाथ से कुत्ते को दूर भगाया। एक मजदूर ने कहा, बहन सड़क पर रात गुजारने वाले का सबसे पहला दुश्मन यही जानवर होते हैं, एहतियात करना। सुबह की पहली किरण ने कुछ भी नया नहीं बदला। सड़कें वही थी,
हवा वही थी, सिर्फ मेरे अंदर एक फैसला पुख्ता हो चुका था। अब मैं भीख मांगने से भी न शर्माऊंगी। अपने बच्चों के लिए मैं हर दरवाज़ा खटखटाऊंगी, हर जिल्लत बर्दाश्त करूंगी, मगर इन्हें भूखा नहीं मरने दूंगी। मैंने बच्चों को तैयार किया, बड़ी बेटी के बाल बांधे, छोटे बेटे को झाड़ा और छोटी को गोद में लिया। फिर मैंने अल्लाह का नाम लेकर करीबी बाजार की तरफ रुख किया। वहाँ रोज़ दर्जनों लोग आते थे। शायद कोई अल्लाह का बंदा हमारी हालत पर रहम कर दे। बाजार के किनारे एक बेंच खाली था। मैंने बच्चों को वहाँ बिठाया, खुद झिझकते झिझकते बाजार में चलना शुरू किया। जो दुकानदारों के पास जाकर कहती, भाई कुछ दे दे, वो अल्लाह तुम्हें कुछ रखे। किसी ने धुतकारा, किसी ने नज़र उठाकर भी नहीं देखा। कोई खाली हाथ लौटा देता। कुछ लोग रहम खाते, कुछ सिक्के फेंक देते, कुछ तंजिया जुमले उछालते। पेशावर भिखारनें बढ़ गई हैं। आजकल जवान औरतें मांगने के लिए निकलेंगी तो यही होगा। मेरे कदम कांटे चुभते रास्ते पर थे। अब दिल सख्त हो चुका था। दिन ढलते ढलते जितने पैसे इकट्ठे हुए उनसे 2 वक्त की रोटी का बंदोबस्त किया। बच्चों ने खाना खाते मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा। उस लम्हे मेरी सारी थकन दूर कर दी। बाजार के किनारे एक कोने में बैठे कई दिन हो गए थे। अब तो वहाँ दुकानदार और ग्राहक मेरे बच्चों समेत मुझे पहचानने लगे थे। सुबह सवेरे जब बाजार खुलता, मैं बच्चों को लेकर एक तरफ बैठ जाती और अपनी झुकी नज़रों के लिए लोगों के सामने हाथ फैला देती। कुछ लोग अपनी मसरूफियत में मुझे नज़रअंदाज कर देते, कुछ चंद सिक्के डाल देते और कुछ तंजिया निगाहों से देख कर हंसते। एक दिन जब मैं हाथ फैलाए खड़ी थी, एक नौजवान जोड़ा मेरे करीब से गुजरा। लड़की ने सरगोशी में कहा, देखा कैसी बनावटी शक्ल बनाई हुई है, हाथ में बच्चे उठा कर रखे हैं ताकि तरस आए। लड़के ने हंसकर कहा, यही कारोबार है आजकल, आसान कमाई। मेरे कानों में यह आवाज़ तीर की तरह पेवस्त हो गए। मैंने अपनी चादर को मजबूती से ओढ़ लिया और नज़रें नीचे करके बैठ गई। उनकी बातों का जवाब देने का हौसला मुझ में नहीं था। बच्चों की भूख और मजबूरी मेरी ज़बान को बंद कर चुकी थी। धूप तेज़ हो रही थी। छोटे बेटे ने पानी मांगा। मैंने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाई तो सामने एक ठेले पर पानी की बोतलें दिखाई दी। मैंने जेब में हाथ डाला। जो सिक्के इकट्ठे किए थे उनमें से चंद सिक्के बचे हुए थे। हिचकिचाते हुए पानी की एक बोतल खरीदी। तीनों बच्चों ने वो पानी ऐसे पिया जैसे कई दिनों के प्यासे हों। बाजार में एक जगह छोटा सा होटल था। अक्सर वहाँ के मुलाजमीन खाना बचा हुआ मुझे दे देते थे। मैं दिल ही दिल में उनका शुक्रगुजार होती थी। एक दिन होटल के मालिक ने मुझे करीब बुलाकर कहा, बीबी ये जगह सड़क के किनारे है, यहाँ से उठ जाओ, ग्राहक परेशान हो जाते हैं। मैंने हाथ जोड़कर कहा, साहब मैं किसी के सामने बैठकर भीख नहीं मांगती, बस एक कोने में बैठी हूँ। मगर उसने सख्ती से कहा, बात समझ लो वरना पुलिस बुला लूँगा। मैंने खामोशी से अपने बच्चों को उठाया और बाजार के दूसरे कोने में जा बैठी। हर जगह हर इंसान का दिल इतना बड़ा नहीं होता कि किसी की मजबूरी को समझे। कभी कोई अमीर औरत बड़ी शान से अपनी शॉपिंग करती और मेरे पास से गुजरते हुए नाक सिकोड़ती। एक दिन एक खातून ने अपने बच्चे को मेरे करीब से गुजरते सख्ती से खींच लिया और कहा, ये लोग गंदे होते हैं, दूर रहो इनसे। मेरा दिल चाहा कि कहूँ कि गुर्बत गंदगी नहीं होती, मगर अल्फाज गले में अटक गए। मैंने सर झुकाया। कभी कभार कोई नर्म दिल वाला आ जाता, कभी खाने को दे जाता। एक दिन एक बुजुर्ग आदमी करीब आया। उसने एक पुरानी रोटी और कुछ सिक्के मेरे हाथ पर रख दिए। बेटी, अल्लाह तेरे हाल पर रहम करे, हिम्मत ना हारना। मैंने आंखों में नमी के साथ शुक्रिया अदा किया। ऐसे लम्हे मेरी बिखरी हुई हिम्मत को थोड़ा थोड़ा जोड़ देते थे। बाजार के एक कोने में सब्जी फरोश भी बैठे थे। एक दिन जब मैं वहाँ से गुजरी, एक सब्जी फरोश ने आवाज़ दी, बीबी ले जा कुछ बचे हुए टमाटर, सालन बना लेना। मैंने खुशी खुशी शुक्रिया अदा किया और वो ख़राब हाल टमाटर उठा लिए। ये छोटे छोटे सहारे मेरी ज़िंदगी में बड़ी नेमत थे। बच्चों का हाल दिन ब दिन ख़राब होता जा रहा था। कभी बुखार, कभी खांसी। मैंने कोशिश की कि किसी दवाखाने जाऊं, मगर दवाइयाँ खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आते। मैंने खुद ही जड़ी बूटियों से इलाज करने की कोशिश की। कभी ठीक हो जाते तो फिर कभी बीमार हो जाते। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे, कभी उम्मीद की किरण, कभी मायूसी की चादर। लेकिन मैंने खुद से अहद कर लिया था कि बच्चों के लिए हर जिल्लत सहूँगी, हर जख्म बर्दाश्त करूँगी, मगर इन्हें भूखा नहीं मरने दूंगी। बाजार की सड़कों पर बैठे बैठे मुझे हफ्ते गुजर चुके थे। अब लोगों के चेहरों पर एक ही नज़र में समझ जाता था कि कौन महज तमाशा देखने आया है और कौन वाकई दिल में हमदर्दी रखता है। मगर फिर भी मैं सुबह से शाम तक
इसी उम्मीद पर बैठी रहती कि किसी दिन कोई मौका होगा। एक शाम जब बाजार बंद हो चुका था और सड़क पर अंधेरा फैलने लगा था, मैंने बच्चों को संभाला और चल पड़ी। सर्दी बढ़ने लगी थी और खुले आसमान के नीचे रात गुजारना अब मज़ीद मुश्किल हो रहा था। छोटी बेटी का बुखार बढ़ गया था। उसका छोटा सा जिस्म मेरे कंधे पर पड़ा था और कभी हल्की सी सिसकारती मरती, कभी कांपती। चलते चलते मेरी नज़र एक वीरान दुकान पर पड़ी। दरवाज़ा टूटा हुआ था और अंदर कचरे के ढेर लगे हुए थे, मगर चारों तरफ दीवारें थी और छत भी थी। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि कम से कम बारिश और ठंडी हवा से बचाव का इंतज़ाम हो सकता है। मैंने चादर से कचरे के एक तरफ धकेला। कुछ खाली कार्टन पड़े हुए थे, उन्हें बिछाकर बच्चों को लिटाया। छोटी बेटी को मैं लेकर सहलाने लगी। दोनों बेटे भी थकन से निढाल होकर वहीं एक तरफ हो गए। मैंने अपने फटे हुए दुपट्टे को लपेटकर उनके ऊपर डाल दिया ताकि सर्दी से बच सकें। रात भर मैंने जागते जागते बेटी का माथा छुआ। बुखार कम होने का नाम नहीं ले रहा था। ना कोई दवा थी, ना किसी डॉक्टर तक पहुंचने की हिम्मत। एक बार दिल में आया कि किसी अस्पताल के सामने जाकर बैठ जाऊं, मगर बगैर पैसे के वहां कौन हाल पूछता है। सुबह फजर का वक्त छोटे बेटे ने रोते हुए कहा, अम्मी भूख लग रही है। मैंने अपने खाली दामन की तरफ देखा। पिछले दिन जमा किए गए चंद सिक्के भी ख़त्म हो चुके थे। कोई खाने को कोई चीज़ न थी। मैंने उसे प्यार से अपने साथ लपेट कर कहा, बेटा आज कुछ अच्छा खाने को मिलेगा। यह वादा सिर्फ उम्मीद देने के लिए था, हकीकत से बहुत दूर। दिन निकला तो मैंने फैसला किया कुछ न कुछ कमा कर लाऊं। मैं बच्चों को वहीं छोड़कर करीबी होटलों और दुकानों पर काम मांगने चली गई। हर जगह एक ही जवाब मिला, काम वाली चाहिए, मगर अच्छी हालत वाली। गंदगी वाली कपड़ों में तो कोई अपने घर भी नहीं आने देता। मैं खामोशी से लौट आई। दुकान के कोने में बैठकर बच्चों को देखती रही। छोटी बेटी का जिस्म अब भी तप रहा था। दिल चाहता था कि खुद को नोच लूं, मगर सब्र के सिवा कोई और रास्ता नहीं था। धूप तेज़ हुई तो मैंने दुकान के सामने एक कपड़ा बिछाकर मांगना शुरू कर दिया। कुछ लोग गुजरे, किसी ने 5 रुपए फेंके, किसी ने 1-2 बिस्किट रख दिए। मैंने जल्दी से वो सिक्के संभाले और शाम होते ही थोड़ी सी दाल और 2 रोटियां खरीदी। बच्चों के सामने जब खाना रखा तो उनकी आंखों में खुशी देखकर लगा जैसे दुनिया की सारी दौलत मेरे पास आ गई हो। वो नन्हे हाथों से दाल में रोटी डिबो डिबो कर खाते रहे। मैं खुद भी एक निवाले लेकर रुक गई ताकि ज़्यादा खाने के लिए बच्चों के पास हो। इसी दौरान एक दिन वहाँ एक सब्जी वाले ने मुझे बुलाया, बीबी कल से कुछ बची हुई सब्जियाँ दे दिया करूँगा, तुम खुद सालन बना लेना। मैंने दुआ करते हुए कहा, अल्लाह खुश रखे आपको। ये छोटे छोटे एहसान मेरे दिल को थोड़ा सा सुकून देते थे। हर रात इसी वीरान दुकान में लौटती, बच्चों को गोद में लेकर उनके साथ लेट जाती और आने वाले कल के लिए अल्लाह से दुआ करती। कभी कभी दुकान के पास कोई अमीर गाड़ी गुजरती, अंदर बैठे बच्चे मज़े से खाते हंसते। मेरे बच्चे हसरत भरी नज़रों से उन्हें देखते, लेकिन मैं जल्दी से इनकी तवज्जो हटाने की कोशिश करती। देखो हम भी एक दिन गाड़ी में घूमेंगे इंशाअल्लाह, बड़ा बेटा मासूमियत से कहता। अम्मी कब? मैं हल्की मुस्कुराहट के साथ जवाब देती, जल्द ही, बस सब्र करो। दिन पर दिन गुजरते जा रहे थे। छोटी बेटी की हालत बिगड़ती जा रही थी। एक दिन अचानक वो बेहोश हो गई। मैं घबराकर उसे उठाते हुए करीबी दवाखाने की तरफ भागी। डॉक्टर ने एक नज़र देखा और बोला, बुखार पुराना हो चुका है, दवा और ड्रिप की ज़रूरत है। पैसे हैं? मेरे चेहरे की बेबसी देखकर उसने कंधे अचका दिए। माजरत बहन, बगैर पैसों के इलाज नहीं हो सकता। मैंने वापस लौटते हुए सोचा, ये दुनिया पैसे की है। मोहब्बत, हमदर्दी, सब बातें किताबों में रह गई हैं। वापस दुकान पर आकर बेटी को ज़मीन पर लिटाया। रात भर जाकर उसका माथा सहलाती रही। अल्लाह का शुक्र था कि अगली सुबह वो ज़रा बेहतर हो गई। कमज़ोरी अब भी थी, मगर आंखें खुल गई थी। मैंने तहैया कर लिया कि अब बच्चों को सड़कों पर नहीं घसीटूँगी, जितना भी मांगूँ कमा सकूँगी, लेकिन दुकान को अपना छोटा सा आशियाना बनाकर उन्हें महफूज रखूँगी। माँ की मोहब्बत हर कुर्बानी पर भारी थी। मेरी भूख, मेरी थकन, मेरी बेइज्जती, सब कुछ उनकी हंसी पर कुर्बान था। सर्दियों की एक दोपहर थी। बाजार में भीड़ कुछ कम थी। मैं हस्बे मामूल अपने कपड़े का टुकड़ा बिछाकर बच्चों के साथ एक कोने में बैठी थी। हाथ में एक पुरानी सी प्याली थी जिसमें चंद सिक्के जमा हो चुके थे। बच्चों को बार बार समझा रही थी कि ज़्यादा शोर न करें ताकि कोई हमें धुतकार न दे।
इसी दौरान सामने एक बड़ी और चमचमाती गाड़ी आई। मेरी आदतन नज़रें उस पर झुक गईं। अक्सर लोग हमारी तरफ देखना गवारा भी नहीं करते थे। गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता मेरे करीब रुकी, दरवाज़ा खुला, एक शख्स बाहर निकला। मैंने एक नज़र देखा और सांस रोक गई। वो चेहरा जो मैं ख्वाबों में देखती रही, जो मेरी हर दुआ का मरकज़ था। वो असद था, बिल्कुल उसी जैसा, बिल्कुल शायद उससे भी बेहतर हालत में। मेरी आंखें यकीन करने से इनकार कर रही थी। मैंने जल्दी से बच्चों को अपनी चादर के नीचे छुपा लिया और उठ खड़ी हुई। धड़कते दिल के साथ उसकी तरफ बढ़ी। कुछ फासले पर जाकर आवाज़ दी, असद। उसने मेरी तरफ देखा। मैंने उम्मीद भरी नज़रों से उसे देखा। शायद वह मुझे पहचान ले, मगर उसके चेहरे पर कोई हैरत, कोई पहचान न थी। उसने उलझन से मेरी तरफ देखा और तल्खी से बोला, देख के नहीं चलती हो बीबी, सड़क पर बैठकर रास्ता रोकती हो। मेरी दुनिया एक बार फिर लरज़ गई। मैंने लड़खड़ाती हुई आवाज़ में कहा, असद, मैं हूँ फातिमा, तुम्हारी फातिमा। उसने ताज्जुब से मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और सर्द लहजे में बोला, क्या बकवास कर रही हो? मैं कोई असद नहीं हूँ, मेरा नाम फरहान है। मैंने उसकी आंखों में झांकने की कोशिश की, जैसे कहीं कोई सच छुपा हुआ हो। असद, ये बच्चे हैं तुम्हारे, देखो इन्हें। इसने गाड़ी की तरफ बढ़ते हुए कहा, जाओ बीबी, अपना तमाशा ना बनाओ, ये सड़कें सबकी नहीं होती। मेरी टांगें कांपने लगी। मैं बमुश्किल बच्चों के पास वापस आई। दिल चाह रहा था कि चीखूं चिल्लाऊं, मगर सच्चाई ने मेरे लब सी दिए थे। लोग मुझे हैरत से देख रहे थे। कुछ ने सरगोशियाँ की, पागल हो गई है। शायद किसी ने कहा, भला ऐसा कब होता है? जो मर गया हो वह वापस कैसे आएगा? मेरी नज़रें बदस्तूर उस गाड़ी को देख रही थी जो अब दूर जा चुकी थी, लेकिन मेरा दिल वहीं टिक कर रह गया था, उसी लम्हे जहाँ हकीकत और ख्वाब गडमड हो गए थे। मैं बच्चों को संभालते हुए वापस दुकान की तरफ लौटी। छोटी बेटी ने पूछा, अम्मी वो कौन था? मैंने कहा, उसके सर पर हाथ फेर कर कहा, कुछ नहीं बेटा, बस एक ख्वाब था। अगले दिन दिल में अजीब सी बेचैनी थी। मैं उसी जगह वापस गई। शायद वो फिर आए, शायद कोई वजाहत मिले। कुछ देर बाद वाकई वही गाड़ी दोबारा आई दिखाई दी। मेरे दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने अपनी जगह से उठकर सड़क के किनारे खड़े होने की हिम्मत की। गाड़ी रुकी, वही शख्स उतरा। आज उसने मुझे देखा तो कुछ लम्हे के लिए रुका। मैंने मौका गनीमत जानकर तेजी से आगे बढ़कर कहा, असद, प्लीज़ मेरी बात सुनो। वो सर्द लहजे में बोला, कितनी बार कह चुका हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। मैंने गिरेबान पकड़कर कहा, अगर तुम असद नहीं हो तो तुम्हारी आंखें क्यों वही हैं, तुम्हारी आवाज़ क्यों वही है? वो हाथ झटककर पीछे हटा और गाड़ी में बैठते हुए बोला, पागल औरत हो, मेरा पीछा छोड़ दो। और गाड़ी तेज़ी से रवाना हो गई। मेरी उंगलियां फिजा में मलक होकर रह गईं, आंखों में आंसू थे, दिल में इस्तराब। उसी दिन बच्चों ने कुछ नहीं खाया। मैंने भी चुपचाप बैठी रही, दीवार को घूरती रही, सोचती रही कि अगर वो असद है तो वह मुझे क्यों नहीं पहचानता? अगर नहीं है तो ये मुशाबत इतनी गहरी कैसे हो सकती है? अगले कुछ दिन मैंने इसी कार्य में गुजारे। अब मैं कुछ भीख मांगती और ज़्यादा सड़क पर नज़र दौड़ाती, हर चमचमाती गाड़ी को देखती, हर अजनबी चेहरे में अपने शोहर की झलक तलाश करती। एक दिन एक फ़कीरनी मेरे पास करीब आकर बैठ गई। उसने मेरा हाल देखा और कहा, बेटी, कभी कभी जो हम देखते हैं वो मुकम्मल सच नहीं होता। अल्लाह से दुआ मांग, सच खुद तेरे सामने आ जाएगा। मैंने अपनी कांपती हुई उंगलियों से दुआ के लिए हाथ उठाए और धीरे दिल में कहा, ए अल्लाह, अगर ये मेरा वही असद है तो सच को मेरे सामने ला, अगर नहीं तो मेरे दिल से ये उम्मीद निकाल दे। अब हर लम्हा एक नई बेचैनी के साथ गुजर रहा था। सच्चाई का सामना तो बाकी था और मैं इस घड़ी का इंतज़ार कर रही थी जब ये पहेली पूरी तरह खुलेगी। असद को देखने के बाद मेरा दिल चैन नहीं लेने दे रहा था। दिन उम्मीद और बेयकीनी के दरमियान गुजरता। मैं जानती थी कि जो मैंने देखा वो कोई फ़रेब नहीं था, मगर उसका इनकार, उसकी बेरुखी मुझे अंदर से तोड़ रहे थे। फिर भी मैंने हार नहीं मानी। एक दिन मैंने हिम्मत करके ही सड़क पर अपनी जगह बदली, जहाँ से वो अक्सर गुजरता था। बच्चों को दुकान पर छोड़कर मैं तन्हा उसके रास्ते में खड़ी हो गई। गाड़ी आकर रुकी तो मैंने दौड़कर उसके दरवाजे के पास जाकर कहा, असद, एक बार मेरी आंखों में देखो, सच छुप नहीं सकता। उसने बेजारी से कहा,
کتنی بار کہہ چکا ہوں میں اسد نہیں ہوں، فرحان ہوں، اپنی عزت کا کچھ خیال کر دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ میں نے گریہ کرتے ہوئے کہا، اگر تم اسد نہیں ہو تو پھر کیوں میری روح تمہیں پہچان رہی ہے؟ کیوں میرے دل میں یقین ہے کہ تم ہی میرے وہی ہو؟ اس کے چہرے پر ایک لمحے کو الجھن ابھری، مگر فوراً سنبھل گیا۔ اس نے دروازہ بند کیا اور گاڑی آگے بڑھا لی۔ میں دھول میں لپٹی کھڑی رہ گئی، بچوں کو معصوم نظروں میں اب سوال کرنے لگی تھی کہ کیوں میں روز خالی امید لے کر واپس آتی ہوں۔ 2 دن بعد اسی سڑک پر عجیب واقعہ ہوا۔ میں نے اسے ایک پرانی کتابوں کی دکان کے باہر کھڑے دیکھا۔ وہ کسی کتاب کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ میرے قدم خود بخود اس کی طرف بڑھنے لگے۔ اچانک دکان والے نے ایک پرانی اردو کتاب اس کے ہاتھ میں دی۔ جیسے ہی اس نے کتاب کھولی، ایک تصویر نکلی۔ اس تصویر میں تھی اور اسد، ساتھ ساتھ ہماری شادی کے دن کی تصویر۔ میں دور کھڑی سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ اسد کی آنکھیں تصویر پر جم گئیں، اس کے ہاتھ کانپنے لگے، چہرے پر حیرت اور الجھن ایک ساتھ پھیل گئی۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا، دیکھا یہ تم ہو اور یہ میں؟ وہ چونک کر میری طرف دیکھنے لگا۔ اب کی بار اس کی نظریں خالی نہیں تھیں۔ یہ میں ہوں۔ اس کی آواز بھاری ہو گئی۔ ہاں اسد، تم ہو، شوہر ہو تم، میرے بچوں کے باپ ہو۔ وہ پیچھے ہٹ کر دیوار سے ٹک گیا، اس کا چہرہ پسینے سے بھیگ گیا۔ مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا، پر یہ تصویر، یہ چہرہ۔ وہ بڑبڑانے لگا۔ میں نے قریب ہو کر آہستہ سے کہا، تمہیں سب یاد آ جائے گا، بس آنکھیں بند کر لو، دل سے سنو۔ اس نے آنکھیں بند کیں۔ چند لمحے ایسے گزرے جیسے دنیا تھم گئی ہو، پھر اس کے ہونٹوں پر لرزتی ہوئی سرگوشی آئی، فاطمہ۔ میں نے آنسو ضبط کرتے ہوئے کہا، ہاں میں فاطمہ ہوں، تمہاری فاطمہ۔ اسد نے آنکھیں کھولی۔ اب اس کی آنکھوں میں اجنبیت نہیں تھی، پہچان تھی۔ میں یاد کر رہا ہوں، ایک حادثہ تھا، خون میں لت پت تھا۔ وہ بولتے تھے، خون رک گیا ہے۔ میں نے دھیرے سے کہا، ہاں اسد، تم دبئی گئے تھے، وہاں حادثہ ہوا۔ اس نے سر تھام لیا۔ مجھے ہوش آیا تو میں کسی اجنبی گھر میں تھا، ایک بڑا سا بنگلہ۔ ان لوگوں نے کہہ دیا کہ میں ان کا بیٹا ہوں۔ میں نے اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا تو پہچان نہ سکا، چہرہ بگڑ گیا تھا، میری آنکھیں چھلکنے لگیں۔ وہ بولتا رہا، ان کا اصل بیٹا حادثے میں مر گیا، اور شاید میرا چہرہ اتنا مسخ ہو گیا تھا کہ شناخت ممکن نہیں رہی۔ انہوں نے مجھے اپنا بیٹا مان لیا، میں بھولا ہوا تھا، میں نے خود کو ان کا سمجھ لیا۔ میں نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، مگر دل نے تمہیں نہیں بھلایا اسد، دل نے تمہیں میری طرف کھینچ ہی لیا۔ اسد دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا رہا۔ فاطمہ، میں تمہیں اور اپنے بچوں کو بھول گیا تھا۔ میرا دل بے چین ہوتا تھا، مگر سمجھ نہ پاتا تھا کہ کیوں۔ اب میں سمجھ گیا، ادھورا کیوں تھا۔ وہ زمین پر بیٹھ گیا، میں پاس آ کر بیٹھ گئی۔ ہم دونوں کے بیچ بے آواز سسکیاں تھیں، درد کا ایک خاموش سمندر تھا۔ اس نے میری طرف دیکھا اور کہا، مجھے معاف کر دو فاطمہ، میں نہیں جانتا تھا میرے بھولنے پہ تم پر کیا بیتی ہوگی۔ میں نے ہلکی آواز میں کہا، میں نے کبھی تم سے شکایت نہیں کی، بس تمہارے واپس آنے کی دعا کی تھی۔ اللہ نے میری دعا سن لی ہے۔ بچوں کی طرف دیکھنے لگا۔ میری گود میں بیٹی سو رہی تھی۔ یہ میرے بچے ہیں، وہ سرگوشی میں بولا۔ ہاں، تمہاری اولاد، تمہاری امانت۔ اس نے بیٹی کے ماتھے پر بوسہ دیا، جیسے کھوئی ہوئی دنیا دوبارہ واپس مل گئی ہو۔ سچائی کا بوجھ ہلکا ہو چکا تھا، راز کھل چکا تھا۔ میں نے دل میں شکر ادا کیا کہ تقدیر چاہے جتنے پیچ ڈالے، سچ ہمیشہ اپنی راہ ڈھونڈ لیتا ہے۔ جب راز کھلا، اسد کو سب کچھ یاد آ گیا۔ ہم دونوں ایک وقت کے لیے ایک دوسرے کے سامنے یوں بیٹھے تھے جیسے صدیوں کی دوری ایک لمحے میں ختم ہو گئی ہو۔ اسد نے بچوں کو گود میں اٹھایا، ان کے چہروں سے دیر تک دیکھتا رہا، جیسے ہر نقش کو دل میں محفوظ کر لینا چاہتا ہو۔ پھر میری طرف دیکھ کر بولا، فاطمہ، اب تمہیں اس سڑک پر ایک پل نہیں بیٹھنا پڑے گا۔ اس رات وہ ہمیں اپنے ساتھ لے کر ایک چھوٹے سے ہوٹل میں ٹھہرا۔ صاف بستر، گرم کھانا، بچوں کے چہروں پر مسکراہٹ، اور میرے دل میں بے یقین سا سکون۔ اسد رات بھر جاگتا رہا، کبھی بچوں کو دیکھتا، کبھی مجھ سے سوال کرتا، میرے بغیر وہ کیسے جیے، اور میں ہر سوال پر خاموشی سے آنسو بہاتی رہی۔ صبح ہوتے ہی اسد نے کہا، اب وقت ہے سچ کا سامنا کرنے کا۔ میں نے کوئی سوال نہیں کیا، بس خاموشی سے اس کا ساتھ دیا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اسد نے ایک نظر پیچھے دکان کی طرف ڈالی، جہاں میں نے مہینوں پناہ لی تھی۔ فاطمہ، میں یہ قرض کبھی نہیں چکا سکتا،
तुमने मेरे बच्चों के लिए झुकाया। मैंने धीरे से कहा, ये कर्ज नहीं था, मोहब्बत थी। गाड़ी सीधा उस मोहल्ले की तरफ गई जहाँ मेरा पुराना ससुराल था। रास्ते में असद का चेहरा सख्त हो चुका था। दरवाजे पर पहुंचकर उसने कॉल बेल की। दरवाज़ा खुला तो सामने मेरी सास खड़ी थी। उसने असद को देखते ही चीख मार दी, असद, मेरा बेटा जिंदा है। पूरा घर इकट्ठा हो गया। ससुर लड़खड़ाते कदमों से आए, हाथ बढ़ाकर कहा, बेटा तू जिंदा है, तू कहाँ था? असद ने उनके हाथ नहीं थामे। वो 2 कदम पीछे हटा और सर्द लहजे में वो बोला, जिस दिन मेरी लाश को बगैर पहचाने दफन कर दिया था, उस दिन मुझे मार दिया गया था। सास और ससुर एक दूसरे का मुंह देखने लगे। असद ने मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा, ये वही फातिमा है जिसे तुमने मेरी मौत का जिम्मेदार ठहराया, इद्दत में घर से निकाला, बच्चों समेत दर दर भटकने पर मजबूर किया। सास ने आगे बढ़कर रोते हुए कहा, बेटा गुस्से में थे, दुख में थे, माफ़ कर। असद ने ठंडी सांस लेकर कहा, माफ़ करना आसान है, भूल जाना मुश्किल। तुम्हें माफ़ कर दिया, मगर फातिमा का दुख, बच्चों की भूख, व सड़कों पर गुजारे दिन कभी नहीं भूल सकता। पूरा मोहल्ला दरवाजे पर इकट्ठा हो चुका था। हर कोई हैरत से देख रहा था। एक औरत ने सरगोशी की, कैसा वक्त बदला। दूसरी ने कहा, हक पर तो फातिमा ही थी। सास ने हाथ जोड़कर कहा, बेटा वापस आ जा, घर संभाल ले। असद ने सख्ती से कहा, यह घर अब मेरे लिए कब्र से कम नहीं। मैं अपनी फातिमा और बच्चों को दोबारा इस जन्म में नहीं लाऊंगा। हम वहाँ से निकले तो अगला रास्ता मेरे भाई के घर का था। मैंने डरते डरते कहा, असद छोड़ दो, जाने दो। मगर असद ने नरमी से कहा, नहीं फातिमा, जो तकलीफ़ उन्होंने दी है उसका सामना ज़रूरी है। भाई के घर पहुँचे तो दरवाज़ा बजाया। नौकर ने दरवाज़ा खोला। हमें देखकर साकित रह गया। भाभी पीछे से आई, पहले मुझे देखा, फिर असद को, और चेहरा सफ़ेद हो गया। उसने कहा, बुलाओ भाई को। भाई बाहर आया। मुझे और बच्चों को देखा, नज़रें झुका लीं। असद ने सख्त लहजे में कहा, जब ये बहन भीख मांगती सड़कों पर बैठी थी, तब तुमने एक बार भी दरवाज़ा खोल कर न देखा। आज देख लो, वक्त बदल गया है। भाभी ने रूखे लहजे में कहा, हमें क्या पता था तुम जिंदा हो, हम तो अपने आप को मुसीबत से बचा रहे थे। असद ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहा, मुसीबत से बचने के चक्कर में इंसानियत खो दी। भाई ने वह मुश्किल कहा, माफ़ कर दो फातिमा, गलती हो गई, मैंने अपनी नज़रें झुका ली। असद ने मेरा हाथ थम कर कहा, फातिमा माफ़ कर सकती है, मगर जो वक्त गया, जो ज़ख्म लगे, वो कभी नहीं भूल से जा सकते। पूरी गली में सरगोशियाँ हो रही थीं। किसी को यकीन नहीं आ रहा था कि ये वही फातिमा जो कल तक सड़कों पर थी, आज फिर से सर उठाकर खड़ी है। असद ने बच्चों को गाड़ी में बिठाया और मेरी तरफ देखकर कहा, अब हम नई ज़िंदगी शुरू करेंगे, एक ऐसी जगह जहाँ तुम्हें और बच्चों को कभी माजी की तकलीफ़ की याद ना आए। गाड़ी के शीशे से मैंने आखिरी बार उन गलियों को देखा जहाँ मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी आजमाइशें झेली थी। अब मेरे दिल में कोई नफ़रत ना थी, बस एक थकी हुई सी खामोशी थी। माफ़ी देना अजमत थी, मैं जानती थी, मगर उन जख्मों को भूल जाना आसान नहीं था जो अपनों ने दिए। नई ज़िंदगी की शुरुआत आसान नहीं थी, मगर असद ने हर मुमकिन कोशिश की कि मुझे और बच्चों को वो वक्त भुला सके जो हमने अजियत में गुजारा था। हमने एक साफ़ सुथरा नया घर लिया, शहर के एक अच्छे इलाके में बच्चों के लिए स्कूल का बंदोबस्त किया। मैंने पहली बार ज़िंदगी में ये महसूस किया, अब मेरे सरों पर कोई छत है जहाँ से तानों के पत्थर नहीं बरसेंगे। असद ने कारोबार को संभाला और दिन रात मेहनत की। अक्सर फातिमा, जो वक्त तुमने गुजारा मैं उसे कभी नहीं भुला सकता, लेकिन जो वक्त आने वाला है उसे ज़रूर खूबसूरत बना सकता हूँ। मुस्कुराकर सर हिला देती। बच्चों की खुशियाँ अब मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी दौलत बन चुकी थी। हमारे आसपास लोग हमें इज़्ज़त की निगाह से देखते थे। अब कोई तहकीर नहीं करता था, तंज नहीं करता था। बाज़ार में जाते तो लोग सलाम करते थे। मोहल्ले में हमें इज़्ज़त मिली, सुकून मिला, लेकिन कहीं दिल के किसी कोने में वो पुराने ज़ख्म अब भी ताज़ा थे, जो कि कभी कभी रात के सन्नाटे में हरे हो जाते थे। एक दिन छोटे बेटे ने स्कूल से आकर कहा, अम्मी, आज मेरी टीचर ने कहा है कि हम अपने हीरोज़ पर मजमून लिखें। मैंने कहा, मेरा हीरो मेरी माँ है। मैंने उसे सीने से लगा लिया। उसकी एक बात ने मेरे दिल की सारी थकान उतार दी थी।
कभी कभी तन्हाई में बैठकर माजी को सोचती, वो लम्हे जब मैं सड़क किनारे बैठी अपने बच्चों को सीने से लगाए आसमान की तरफ देखती थी, वो नज़रों के सामने आ जाते। वो दिन जब मैं भाई के दरवाजे पर खड़ी तड़प रही थी, वो सब कुछ आज भी मेरे अंदर कहीं दफन था। एक दिन असद ने कहा, फातिमा, क्या तुम कभी उन सबको माफ़ कर सकोगी जिन्होंने तुम्हें तन्हा छोड़ दिया था? मैंने धीरे से जवाब दिया, माफ़ करना सीख लिया, मगर भूलना शायद ज़िंदगी भर ना सीख पाऊंगी। ये सच था। मोहब्बत और सब्र ने मुझे मजबूत बनाया था। अल्लाह पर यकीन ने मुझे थामे रखा, मगर दिल के ज़ख्म कभी मुकम्मल नहीं भरे थे। वो तकलीफ़ें अब मेरे किरदार का हिस्सा बन चुकी थी, मेरी मुस्कुराहट के पीछे छुपी रहती थी। एक दिन मोहल्ले की चंद औरतें हमारे नए घर मिलने आई। उनमें से एक ने झिझकते हुए कहा, फातिमा बहन, अल्लाह ने तुम्हें इज़्ज़त दी, हमें अफसोस है कि हमने तुम्हारी हालत में तुम्हें पहचाना नहीं। मैंने मुस्कुरा कर कहा, कभी कभी वक्त इंसानों के चेहरे बेनकाब करता है। अल्लाह सब कुछ देख रहा है। हम इंसानों की नज़रों से बच सकते हैं, मगर अल्लाह की नज़र से नहीं। महफिल में खामोशी छा गई। मैं जानती थी कि उनके दिलों पर भी शर्मिंदगी की एक तह जम चुकी थी। कई बार ऐसा हुआ कि बाजार में पुराने मोहल्ले वाले मिल गए, नज़रें चुराते सलाम करते और मैं खामोशी से सलाम का जवाब देकर आगे बढ़ जाती। अब बदला लेने का कोई जज्बा ना था। वक्त ने मुझे सिखा दिया था कि सबसे बड़ी फतह सब्र है और सबसे बड़ा इंतकाम खामोशी। अब मैं अक्सर अपने बच्चों को कहानी सुनाती, कहानी एक ऐसी माँ की जो मुसीबतों के तूफान में भी हार ना मानती, जो अपने बच्चों के लिए अपनी इज़्ज़त, अपनी भूख, थकन सब कुछ कुर्बान कर गई। वो कहानी सुनते और आंखों में फ़ख्र के आंसू आ जाते। कभी कभी रात को छत पर बैठकर आसमान की तरफ देखती और आहिस्ता से कहती, या अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने मुझे हारने नहीं दिया। आज जब मैं अपनी कहानी सुनाती हूँ तो सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि कभी भी मजबूर पर जुल्म ना करना। जो आज कमज़ोर है कल ताकतवर हो सकता है। जो आज सड़क पर बैठा है कल इज़्ज़त की छत के नीचे सर उठाकर जी सकता है। वक्त कभी एक सांस नहीं रहता, हालात बदलते रहते हैं, चेहरे बदलते हैं और सब कुछ बदल जाता है, मगर अल्लाह हर वक्त देख रहा होता है। मेरी कहानी से ये सबक मिलता है कि मेरी मोहब्बत, सब्र और अल्लाह पर यकीन इंसान को अंधेरे से निकाल सकता है। कभी किसी की मजबूरी को अपनी जीत ना समझो, क्योंकि हकीकत में सब कुछ अल्लाह के हाथ में है और अल्लाह कभी ज़ालिमों को माफ़ नहीं करता। तो आज की कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाअल्लाह ताला कल तक की वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।